everyone, this is Disha welcoming you to this digital platform of learning. Today I am going to take English from Honeydew. Topic is a visit to Cambridge, and this chapter is given in class 8. So today I am going to teach you part 2 of this lesson. Already I have taught you part 1 of this lesson. So we saw in the last lesson how the writer Firdaus Kanga is so passionate about visiting Cambridge, and he wants to meet Stephen Hawking, the great scientist. The world remembers Stephen Hawking, his contributions, and this writer Firdaus Kanga is so delighted and excited to meet Stephen Hawking at Cambridge. So Cambridge has been a metaphor for the writer, for the author Firdaus Kanga, and he was a disabled person, but he never thought about his disability. And similarly, Stephen Hawking was also disabled. So this lesson is an interaction between the two persons, the two great personalities, I mean Stephen Hawking and Firdaus Kanga. Firdaus Kanga goes to England at Cambridge to meet Stephen Hawking. His guide tells about Stephen Hawking, the great scientist, the scientist who is named after Isaac Newton. This great scientist, Stephen Hawking, he is just considered as a successor to Isaac Newton. And Firdaus Kanga is very much passionate to meet him. And when he goes to his residence, who goes? Firdaus Kanga goes to meet Stephen Hawking. Stephen Hawking is very much blessed with an extraordinary thing. What is that extraordinary thing? He is a great scientist. Being disabled cannot be extraordinary, but any person's words can be extraordinary. So let's move on to this slides. First slide I'll move on to. So Firdaus Kanga was just walking, and when the walking tour was done, I rushed to a phone booth. When the walking tour was done, I rushed to the phone booth. So Firdaus Kanga is just telling about his autobiography. This is a semi-autobiography. जब वॉकिंग टूर खत्म हो गया फिरदौस कंगा का, तो वो कहाँ चले गए? फोन बूथ के तरफ. He rushed to the phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. और जैसे ही इनको पता चला इनके गाइड द्वारा स्टीफन हॉकिंग के बारे में, इस पॉपुलर साइंटिस्ट के बारे में,
तो स्टीफन हॉकिंग के मन में, सॉरी, फिरदौस कंगा के मन में, फिरदौस कंगा को जैसे पता चला कि स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उसी वक्त इनके मन में ये बात आई, ये थॉट्स आई कि क्यों ना स्टीफन हॉकिंग से मिला जाए। तो वॉकिंग टूर खत्म करने के बाद वो फोन बूथ के पास गए और वो जो फोन का तार है ना, वो बाहर तक, क्योंकि ये डिसेबल्ड थे, अंदर नहीं जा सकते थे, अपने व्हील चेयर पर बैठे हुए फिरदौस कंगा उस फोन बूथ से फोन को दरवाजे से बाहर तक खींचकर फोन करने की कोशिश की और उन्होंने किया। ही फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर पे फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। परहैप्स ही थॉट आई हैड propelled myself all the way to write about my travels in Britain। तो यहां पर देखेंगे कि क्या कह रहे हैं स्टीफन फिरदौस कंगा। तो जैसे ही उन्होंने फोन किया स्टीफन हॉकिंग के घर पे, तो स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट ने उस फोन को उठाया और फिरदौस कंगा ने कहा उनके असिस्टेंट से कि मैं बहुत दूर से आया हूं व्हील चेयर में बैठकर भारत से। मतलब व्हील चेयर में बैठकर, मतलब ये मतलब नहीं हुआ कि व्हील चेयर से सीधे व्हील चेयर में होते हुए पूरा वहां पहुंच गए हैं, इंग्लैंड पहुंच गए हैं। व्हील चेयर में बैठकर फिर वो व्हील चेयर उनका ले जाया गया प्लेन में व्हील चेयर पे बैठकर वो फिर इधर आए इंग्लैंड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो कि व्हील चेयर में सारा सफर किए। ठीक है, परहैप्स ही थॉट आई हैव प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। और वो जो असिस्टेंट था स्टीफन हॉकिंग का, बहुत अच्छा आदमी था और उसे यह बात समझ में आ गई कि कितना दूर से फिरदौस कंगा आए हुए हैं उसे मिलने के लिए। और यह भी उसे पता, क्योंकि इन्होंने बताया कि he had come in a wheelchair from India to write about his travels in Britain। तो अपनी यात्रा के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, उस जर्नी का बारे में वो लिखना चाहते हैं, इसीलिए वो इंग्लैंड विजिट किए हैं। ये बात बताया उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट को, और स्टीफन हॉकिंग को भली बात समझ में आ गया, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट को भली बात समझ में आ गया कि वो इतने दूर से आए हैं और वो भी डिसेबल्ड हैं। तो इसलिए वो कोऑपरेट किया। वो जो असिस्टेंट था इनका, स्टीफन हॉकिंग का, फुल्ली कोऑपरेट किया। किसके साथ? कंगा के साथ। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is the picture of Firdaus Kanga. The picture itself speaks that he is disabled. Clear? I'll move on to the next slide. तो फोन पर इन्होंने और क्या कहा फिरदौस कंगा, देखिए। I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. तो फिरदौस कंगा बोले फोन पर उनके असिस्टेंट से, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट से उन्होंने कहा कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट भी चलेगा। अगर 10 मिनट भी उनसे मिलने को मुझे मिल जाए तो काफी है हमारे लिए, मेरा आने का यहां उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हाफ एन आवर ही सेड। तो उनका असिस्टेंट इस पर क्या जवाब दिए? स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट ने बोला हाफ एन आवर, मतलब आपको आधा घंटा समय दिया जाएगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे तक का टाइम रहेगा। तो इन्होंने अपॉइंटमेंट लेना चाहा
फोन पर ही अपॉइंटमेंट ले रहे हैं फिरदौस कंगा स्टीफन हॉकिंग के घर पे फोन करके, और उनका असिस्टेंट अपॉइंटमेंट दे रहा है कि 3:30 से 4 बजे तक आप मिल सकते हैं, यही आपका मिलने का समय हुआ। वो कंफर्म कर दिया असिस्टेंट। तो देख लीजिए किस प्रकार एक्साइटेड है, कितने उत्तेजित है फिरदौस कंगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ये लाइन देखिए, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक ये बहुत ही कमजोर दिखाई देने लगे, इनका शरीर कमजोर हो गया। किसका? फिरदौस कंगा का। जैसे ही अपॉइंटमेंट मिल गया, क्योंकि मन में उनकी खुशी की लहर दौड़ रही थी, और खुशी की लहर कभी कभी दौड़ती है तो कभी कभी शरीर में अलग अलग वैसा होते हैं, फीलिंग आते हैं, और इस प्रकार का फीलिंग इनके मन में आता है, और ये कमजोर, अपने आप को उस समय थोड़ा कमजोर महसूस किए। आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, सारे शरीर में महसूस किए कमजोरी। क्यों? क्योंकि जो नहीं सोचा था वो होने जा रहा है। इन्होंने बस, इनका एक ड्रीम हो गया था कि स्टीफन हॉकिंग से मिलना है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, you get fed up with people asking you to be brave। फिरदौस कंगा कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जो आदमी डिसेबल्ड होता है, बचपन से लेकर बड़ा होने तक डिसेबल्ड रहता है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है जब लोग कहते हैं, नॉर्मल लोग कहते हैं, नॉर्मल लोग मतलब जो डिसेबल्ड नहीं है उनको कहते हैं नॉर्मल। जब नॉर्मल लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो डिसेबल्ड पीपल से कहते हैं कि आप हिम्मत रखो, आपको साहसी होना होगा, आप में साहस भरना होगा, आपको निडर होना होगा। तो जो नॉर्मल लोग डिसेबल्ड पीपल को ऐसे ही सांत्वना देते रहते हैं कि आपको ब्रेव होना होगा, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। और इस प्रकार से वो लोग बिहेव करते हैं, नॉर्मल लोग जो कि होते हैं, वो डिसेबल्ड पीपल से इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे कि किसी के पास जैसे कोई करेज अकाउंट हो, बहादुरी का अकाउंट हो, सबके पास जैसे बहादुरी का अकाउंट हो, इस प्रकार से बिहेव करते हैं। और जिससे कि हम बहुत लेजी फील करते हैं कोई अगर चेक ड्रॉ करना पड़ता है तो एक डिसेबल्ड आदमी के लिए अगर बैंक से चेक ड्रॉ करना है तो उसके लिए दिक्कत हो सकता है, उसको व्हील चेयर में सवार होकर ही उस काउंटर तक जाना होगा, ठीक है। तो वो लेजी नहीं फील करता है। डिसेबल्ड पर्सन जो है अगर उसको चेक ड्रॉ करना है तो ही नेवर फील्स लेजी, ही मे बी डिसेबल्ड बट एनी हाउ ही अकम्प्लिशेस हिज वर्क। ओके, दैट्स व्हाई सम पर्सन्स आर बोर्न विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। और जो क्वालिटीज फिरदौस कंगा में है और जो स्टीफन हॉकिंग में है, ये बहुत ही सराहनीय है। इट शुड, दे आर प्रेज वर्दी of this sort of qualities। Okay, that's why they have become great personalities in this world। I'll move on to the next slide। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge। और जो एक डिसेबल्ड पर्सन होता है, डिसेबल्ड पर्सन होता है जिसको डिफरेंटली एबल्ड नाम दिया गया है। अभी डिफरेंटली एबल्ड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उसके भी एबिलिटी है लेकिन इन डिफरेंट वे। ओके, एक डिसेबल्ड पर्सन भी एक एबल्ड पर्सन है, किसी किसी क्षेत्र में है। वो शरीर से वो डिसेबल्ड हो सकता है, दिमाग से वो डिसेबल्ड नहीं है। तो यहां लेखक कह रहे हैं
द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। एक डिसेबल्ड पर्सन है वो फिरदौस कहंगा, और कहते हैं कि एक चीज होता है जो कि जिसको देखकर हमारे मन में साहस आता है। क्या चीज देखकर? कोई व्यक्ति अगर मेरे जैसे डिसेबल्ड अगर कोई दिखाई देता है तो मन में साहस आता है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और वो आदमी अगर कुछ अचीवमेंट किया रहता है, अपने कुछ ख्याति प्राप्त किया रहता है कोई क्षेत्र में, ही मे बी ए साइंटिस्ट, ही मे बी ए राइटर, ही मे बी ए पेंटर, इस प्रकार के व्यक्ति जो ख्याति प्राप्त किया रहता है उसको देखकर बहुत ही मन को खुशी मिलती है। ये फिरदौस कहंगा कहते हैं, क्योंकि ये डिसेबल्ड थे और जब इन्होंने स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात की तो वो भी डिसेबल्ड थे, तो इनके मन बहुत खुश हो गया क्योंकि वो भी डिसेबल्ड है और कितने रिनाउंड पर्सन्स हैं। ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ साइंस and through his scientific discoveries. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तो हम वो कह रहे हैं फिरदौस कहंगा कि वो खुद ही डिसेबल्ड है, और डिसेबल्ड होते हुए अगर वो किसी दूसरे डिसेबल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त किया होता है, बहुत नाम कमाया रहता है, बहुत कंट्रीब्यूट किया रहता है इस विश्व के लिए, तब वो कहते हैं किसी को भी पता चलता है, तब हमको पता चलता है हाउ मच इज पॉसिबल, कितना संभव है कोई भी कार्य को करना, और उससे प्रेरणा मिलती है, आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए लिखा है रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जिंदगी में अगर हमारे मन में लालसा हो। वो कह रहे हैं, वो अपने डिसेबिलिटी को देखते हुए यह चीज के बारे में कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि डिसेबल्ड है तो क्या हुआ, हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। आई हैवंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। क्योंकि डिसएम्बॉडीड क्यों कहा गया है? कंप्यूटर के लिए कहा गया है। कंप्यूटर को कोई शरीर नहीं होता है, तो उसका कंप्यूटर वॉइस निकल रहा है। कंप्यूटर क्योंकि वो एक बटन प्रेस कर रहे थे और वहां से कंप्यूटर वॉइस निकलता था, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते थे। फिरदौस कहंगा भी नहीं बोल पाते थे और स्टीफन हॉकिंग भी बोल नहीं पाते थे। They had lost their speech also, and Stephen Hawking suffered from paralysis, and that's why he also couldn't speak. तो उसका मशीन वॉइस निकल रहा था। डिसएम्बॉडीड का मतलब बिना शरीर वाला, ओके, विच इज अवे। वो बोल रहे हैं कि मैं कभी ब्रेव नहीं हुआ, अपने आप को कभी ब्रेव नहीं मानता हूं। आई हैवंट बीन ब्रेव। The next afternoon, I had no choice. और दूसरे दिन दोपहर को वो कहते हैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपने आप को ब्रेव नहीं मानता हूं। फिरदौस कहंगा कहते हैं surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. वो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि उनका बॉडी जो है डिसइंटीग्रेट हो गया है, उनके जो शरीर की हड्डियां हैं कमजोर हैं। शुरुआत में बताया गया है ब्रिटल बोन्स के बारे में। ब्रिटल बोन्स का मतलब होता है कि जो हड्डी टूट जाता है किसी के शरीर में और वो कमजोर हो जाता है, कहीं कंधे ऊपर आ जाएंगे, कहीं शरीर टेढ़ा हो जाएगा। तो वही बात वो कह रहे हैं, श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। तो उसका टूटते हुए उनका शरीर जो डिसेबल्ड है उसके साथ वो किसी तरह से रहना चाहते थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि उनको
जीना होगा, वो यह सोच लिए कि इसी शरीर के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बट आई केप्ट क्वाइट, वो चुप रहे, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम। और वो उन सब बातों को बता रहे हैं। उनकी मुलाकात हो गई है स्टीफन हॉकिंग से, और स्टीफन हॉकिंग से वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं इन शब्दों द्वारा। कह रहे हैं कि ये तो चुप रहे, क्योंकि जब भी वो स्टीफन हॉकिंग से कुछ भी कहते, वो पंचिंग कोड से वो पंच करके, बटन को पंच करके करते थे, तो मैशिंग वॉइस निकलता था, ये बोल नहीं पाते थे। तो जब वो उनसे कुछ कहना चाहते थे तो बहुत अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे। जब भी वो कुछ कहते थे फिरदौस कहंगा स्टीफन हॉकिंग से, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, ऐसा लग रहा था कि ये फोर्स कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग को, बाध्य कर रहे हैं बात करने के लिए। तो इनको मन में बहुत ही दुख होता था कि कभी कभी ही वो बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे कि क्यों आखिर उनसे इतना बात पूछकर परेशान कर रहे हैं। देयर ही वॉज, और वहां पर ये जब क्वेश्चन कर रहे थे तो स्टीफन हॉकिंग सामने में वो क्या कर रहे थे, टैपिंग एट द लिटिल स्विच, छोटा सा स्विच था उसको टैप कर रहे थे, दबा रहे थे जवाब देने के लिए। इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिए छोटा सा स्विच को दाब रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बीट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। तो स्टीफन हॉकिंग इसके जवाब देने के लिए, इनके बातों का जवाब देने के लिए छोटा सा जो स्विच है उसको दबा रहे थे, और कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स को खोजना चाहते थे जो कहना चाहते हैं, जिससे कि आवाज कंप्यूटर वॉइस निकलेगा, मशीन वॉइस, विद द ओनली बीट ऑफ मूवमेंट। थोड़ा बहुत अपने हाथ को हिला पा रहे थे, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था। हिज बॉडी वॉज स्टिल लाइक ए फोटोग्राफ, और उनके जो उंगलियां हैं नम हो गए थे, हाँ ये सब नम हो गए थे। इट हैज टर्न पेल, इट वॉज नॉट वर्किंग। हल्का फुल्का उंगलियों से काम कर पाते थे, बटन दबाने वगैरह का, ये सब का। तो स्टीफन हॉकिंग इनको बातों का जवाब देना चाहते हैं और स्विच टैप करके, और दोनों आमने सामने हैं, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कहंगा। आगे बढ़ते हैं। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion। और ये स्टीफन हॉकिंग के बारे में फिरदौस कहंगा बता रहे हैं, उनकी मौजूदगी में जब वो मौजूद थे, स्टीफन हॉकिंग फिरदौस कहंगा के सामने मौजूद थे, उस वक्त ये देख रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग की आंखें बंद हो जा रहे थे बीच बीच में, फ्रस्ट्रेशन के कारण, एग्जॉशन के कारण, थकावट के कारण, शरीर कमजोर होने के कारण उनकी आंखें बीच बीच में बंद हो जा रहे थे। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उसके सामने ये बैठे हुए थे, फिरदौस कहंगा कहां बैठे थे, स्टीफन हॉकिंग के सामने, और उसके एंग्विश को फील कर पा रहे थे, उनके परेशानी को फील कर पा रहे थे। एंग्विश का मतलब होता है एंगर, और यहां पर होता है, यहां पर होगा परेशानी। उनके परेशानी को भी बहुत महसूस कर पा रहे थे कि क्या क्या परेशानी से गुजर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग, कितना दिक्कत हो रहा है उनको इनके क्वेश्चंस का जवाब देने में। हाँ, क्योंकि स्विच टैप करना पड़ता है, वो भी ठीक से टैप नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होता है, ठीक है। द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। और देख रहे हैं उसकी माइंड, उनके माइंड जो है इंटेंसली एक्टिव है, वाइब्रेंट। स्टीफन हॉकिंग का जो माइंड है बहुत ही एक्टिव और वाइब्रेंट है, और उसमें कितने सारे फीलिंग्स है दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, और फ्रोजन फ्रेजेस में उनके थॉट्स आ रहे थे उस मैशिन वॉइस में,
और वो सेंटेंसेस थे बहुत ही कड़क सेंटेंस थे, एज कॉर्प्सेस। कॉर्प्सेस का मतलब लाश के जैसे उनके सेंटेंस निकल रहे थे। एक लाश होता है ना, किसी व्यक्ति का लाश हो जाता, कोई मर जाता है, तो एक प्रकार के उनके सेंटेंसेस निकल रहे थे बहुत मुश्किल से। वो टैप कर रहे थे और वो मैसिंग वॉइस में निकल रहे थे और फ्रोजन फ्रेजेस में निकल रहे थे। ओके, A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत लोगों का मानना है, ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं फिरदौस कहंगा, कि बहुत लोगों का मानना है और सोचना है कि जो लोग डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं। दे आर ऑलवेज सैड। क्रॉनिकली अनहैप्पी का मतलब होता है वेरी सैड ऑलवेज। ओके, तो उनका कहना है, उनका सोचना है फिरदौस कहंगा का कि बहुत सारे लोगों का सोचना है, मानना है कि जो अपंग लोग होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, ये हमेशा खुश नहीं रहते हैं। आई सेड, इन्होंने, इनका कहना है, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। ये कह रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से, ठीक है, डिसेबिलिटी वाली बातें कह रहे हैं, क्रॉनिकली अनहैप्पी वाली बातें ये कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग के साथ। और ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, मेरे बारे में भी सही नहीं है। मैं एक डिसेबल्ड होते हुए मैं एक ऑथर बना, एक राइटर बना, मैंने कितनी किताब लिखी, फिरदौस कहंगा कह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है जो लोग सोचते हैं कि डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं हमेशा दुखी रहते हैं, ये बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूं। फिरदौस कहंगा कहता है मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, स्वयं एक एग्जाम्पल हूं। मैं डिसेबल्ड होते हुए मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो एम्बिशन थी, उसको मैं पूरा किया। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? फिर फिरदौस कहंगा पूछ रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से, क्या अंदर से आप कभी हंसते हैं, कभी खुशी महसूस करते हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। About 3 minutes later, he responded. करीब 3 मिनट बाद वो जवाब दिए। कौन? स्टीफन हॉकिंग, इनके बातों के। I find it amusing when people patronize me. और ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अम्यूज फील करते हैं जब लोग इनको पैट्रोनाइज करते हैं। और फिर ये पूछते हैं, And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? कह रहे हैं, फिरदौस कहंगा कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से कि आप मुझे बताइए, आपको कभी गुस्सा आता है जब कोई मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके घर आता है, आपके सामने आता है और आपको डिस्टर्ब करता है आपके कार्य में, जैसे कि मैं आपसे मिलने आया हूं और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो उसे क्या जवाब देते हैं स्टीफन हॉकिंग? देखिए, द आंसर फ्लैश्ड, और वो आंसर जवाब आ गया, यस। वो कह रहे हैं यस, कंप्यूटर वॉइस कह रहा है यस, आई फाइंड एनोइंग व्हेन समवन लाइक हिम कम्स एंड डिस्टर्ब्स हिम इन हिज वर्क। देन ही स्माइल्ड हिज one-way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो कह रहे हैं उसके बाद स्टीफन हॉकिंग वन वे स्माइल दिए, क्योंकि वो पैरालिसिस के मरीज थे, तो ऐसा करके एक तरफ ओट करके वो हंस रहे थे, बराबर उनकी मुस्कान नहीं थी। तो अपने वन वे स्माइल से मुस्कुराए हुए स्टीफन हॉकिंग, और इनको पता था कि सेंटिमेंटल होना
अच्छी बात नहीं है। नोबडी शुड बी सेंटिमेंटल। वो फिजिकली डिसेबल्ड है लेकिन सेंटिमेंटल क्यों होंगे? वो तो कंट्रीब्यूट कितने सारे किए हैं दोनों, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कहंगा, इनका ढेर सारे कंट्रीब्यूशन है इस संसार को। दैट आई वॉज लुकिंग, और बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुए और बिल्कुल वैसा सिली कोई काम नहीं किए बेवकूफी के जैसा, क्योंकि ये उस समय सबसे सुंदर व्यक्ति, विश्व के सबसे सुंदर व्यक्ति से मिले थे। वह स्टीफन हॉकिंग को विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग एक डिसेबल्ड पर्सन होते हुए उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज की, लोगों को अचंभित कर दिया, उनको नॉलेज की दुनिया में ले गए साइंटिफिक डिस्कवरीज के द्वारा। तो ये इन सब चीजों को इनको पता है, इसीलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो सेंटिमेंटल होंगे, क्योंकि वो ये विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ पार्ट 2। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। और कह रहे हैं फिरदौस कहंगा कि पहली झलक अगर उनकी कोई देखेगा तो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग, बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ। शॉकिंग मतलब हैरान करने वाली। पहला जो झलक अगर कोई स्टीफन हॉकिंग का देखेगा वो बहुत ही शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्टिल फोटोग्राफ के जैसे हैं। उनमें मूवमेंट नहीं है, उनके शरीर में मूवमेंट एकदम ना के बराबर है। हल्का फल्का कुछ हाथ उठ के कभी थोड़ा बहुत मूव करते हैं, हाथ उठ से मूव करते हैं। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। और इस प्रकार से वो स्टिल फोटोग्राफ के जैसे हैं, जैसे जो भी पिक्चर्स हैं उनके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में, मानो कि 3 डायमेंशनल हो गया है, 3D हो गया है। 2D के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार उनका शरीर है, शरीर का बनावट है, और स्टिल इस प्रकार से उनके शरीर में मूवमेंट नहीं है कि अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन में उनका फोटो छपेगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि 3 डायमेंशनल फोटो है, 3D पिक्चर्स के जैसे है। सो दिस इज व्हाट is for you today. So I have completed part 2 of this lesson. I'll move on to part 3 and I'll come with part 3 of this lesson in the next class. Thank you, my dear students.